بلا وجہ کی نفرت، بنا جواز کے بدتمیزی اور بنا مطلب کے اپنی شادی کے سارے فنکشن خراب کر دیے میں نے۔ رائمہ کب کی جا چکی تھی، مگر جاتے جاتے وہ ماہین کو پشیمانی میں گرفتار کر گئی تھی۔ ساری فوٹوز خراب آئیں گی یہ سوچ کر اسے الگ رونا آ رہا تھا۔ یا اللہ کیا کروں، بلا وجہ جلاد سے پنگا لے بیٹھی ہوں، اب معافی کس منہ سے مانگوں گی۔ کھڑکی سے باہر اچانک ہوتی ہوئی بارش کو دیکھ کر ساری باتیں بھلائے افسردگی سے مسکراتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سنو، ملازمہ کو پکارتی وہ آگے بڑھی تھی۔ چھت پر جانا ہے مجھے، بی بی سائیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ سر جھکائے ماہین کو وہ اپنی طرف سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسی لیے تو جا رہی ہوں اور تم بھی چل رہی ہو میرے ساتھ، حکم دیتی ہوئی وہ آگے بڑھی، جبکہ ملازمہ حیرانگی سے اسے دیکھتی ہوئی پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ اذہان کی میڈیکل رپورٹس کئی بار اچھے سے پڑھنے کے باوجود بھی ارتضیٰ دوبارہ سے انہیں اپنے سامنے کھولے بیٹھا تھا، مگر سوچ کے گھوڑے اپنی لگام توڑے ماہین کی سمت دوڑ رہے تھے۔ کئی بار ماہین کو دیکھنے کی چاہ میں دل نے سر توڑ کوشش کی تھی، مگر اس کوشش کو ارتضیٰ شاہ نے بڑی آسانی سے ٹھیک طریقے سے سلا دیا تھا۔ رپورٹس آگے رکھے اب بھی ماہین کو سوچ کر اپنے ذہن کو جھٹکتا ہوا ارتضیٰ شاہ سامنے کھلی رکھی رپورٹس پر جھکا تھا۔ کیا میں اندر تشریف لا سکتا ہوں ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ؟ کافی دیر سے دروازے پر کھڑے ڈاکٹر عامر شہزاد، جو ارتضیٰ کو گہری سوچ میں کھوئے چہرے پر کبھی مسکراہٹ تو کبھی سنجیدگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ آپ کو کب سے میرے کیبن میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ رپورٹس بند کرتا ڈاکٹر عامر کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تب سے۔ کیا پتہ کس ٹائم بھابھی جی یہاں تشریف فرما ہوں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب ہسبینڈ اور وائف کے پرائیویٹ مومنٹس میں دخل دے کر مجھے کباب میں ہڈی تھوڑی نہ بننا ہے۔ شوخی سے کہتے ہوئے وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر لب دبائے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو زیب نہیں دیتی اس عمر میں ایسی باتیں، ڈاکٹر عامر کی بات پر چبا کر کہتا ہوا وہ ان کی عمر پر چوٹ کر گیا۔ اب اس میں عمر کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے تمہاری اور چھیڑنے کا حق تو بنتا ہے۔ عام سے لہجے میں وہ بولتے ہوئے مسکرائے تھے۔ ارتضیٰ کو خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ اپنی بات پر آئے تھے جس وجہ سے وہ ارتضیٰ کے پاس موجود تھے۔ چلو مذاق سے ہٹ کر پوچھتا ہوں، کیا تم بھابھی کو مس کر رہے ہو؟ جواب کی جگہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ تمہیں بھابھی کی شدید یاد آ رہی ہے۔ عامر سے نظریں چرائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حقیقت میں تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اب اڑ کر ماہین کے پاس چلا جائے، مگر انا آڑے آئی ہوئی تھی، ماہین کی طرف سے کوئی پہل جو نہیں ہوئی تھی۔ لب دبائے وہ اپنے لفظوں کا گلا گھونٹ گیا تھا، تلخی سے سوچتا ہوا مسکرایا تھا۔ ماہین کی طرف سے کوئی کال یا میسج نہیں آیا کیا تمہیں؟ بالکل درست اندازے پر ارتضیٰ حیرانگی سے عامر کی طرف گردن موڑ کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر واپس سے رخ موڑ گیا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں ہونی چاہیے۔ جس رشتے میں یہ انا آ جاتی ہے نا تو پھر وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ارتضیٰ، اور میاں بیوی کے رشتے میں تو انا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک جھک جائے تو اس رشتے کی عمر طویل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، بہت بار میرے اور شیزا کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر غلطی میری ہوتی ہے تو منانے میں پہل بھی میں ہی کرتا ہوں، اور اگر غلطی شیزا کی ہو تو تب بھی میں ہی پہل کرتا ہوں۔ آخر میں شرارت سے وہ مسکرائے تھے۔ اور یہاں غلطی تمہاری ہے ارتضیٰ، اور ماہین کی ناراضگی برحق ہے۔ کوئی اپنے ولیمے کے دن دلہن کو بنا بتائے ایسے آتا ہے کیا؟ اسے کون سا فرق پڑتا ہے؟ دل ہی دل میں ماہین کے سرد رویے کو سوچ کر وہ افسردہ ہوا تھا۔ جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو تمہارا یہاں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی عامر کی بات پر ارتضیٰ کی نظریں شرمندگی سے جھکی تھیں۔ تمہاری اور ماہین کی لو میرج نہیں ہوئی ہے جو تم اس کی کالز کی آس لگائے ضد میں یہاں بیٹھے ہو 3 دن سے۔ ارینجڈ میرج ہے تمہاری۔ وقت کے ساتھ تم ایک دوسرے کو سمجھو گے، ایسے نہیں چلے گا۔ یہاں تم انا لگائے بیٹھے ہو اور وہاں ماہین ناراض بیٹھی ہے تم سے۔ یہی دن ہے تم دونوں کے پاس ایک دوسرے کو سمجھنے اور اچھے سے جاننے کے لیے۔ اسے کہیں لے کر جاؤ، بلکہ ہنی مون پر چلے جاؤ، ایک ساتھ گھومو پھرو گے، ایک دوسرے کو سمجھو گے، ایک دوسرے کے درمیان فاصلے مٹاؤ نہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ خاموشی سے ڈاکٹر عامر کی باتیں سنتا ہوا ارتضیٰ پشیمان ہوا تھا۔ تم یہاں ہاسپٹل میں پیشنٹ کے ساتھ ہنی مون منا رہے ہو اور وہاں وہ بیچاری حویلی میں ملازماؤں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے حسین پل خراب کر رہی ہے۔ ارتضیٰ ڈاکٹر عامر کے سنجیدہ چہرے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ یہ؟
तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है। डॉक्टर आमिर की बात पे वो सर खुजाते हुए मुस्कुरा कर उन्हें देख ही रहा था। मुझे बाद में देखते रहना, चलो अब फ़ोन मिलाओ भाभी को। इर्तज़ा के देखने पर चोट करते हुए वो मुस्कुराए। क्यों, वो भी तो कर सकती थी ना। उल्टा सवाल पूछता हुआ वो अपनी चेयर पर बैठा था। क्यों को छोड़ो और तुम भाभी के साथ ही अपनी मसनूई नाराज़गी ख़त्म करो। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी शक्ल पर बजने वाली 12 की वजह। डॉक्टर आमिर की बात पर वो लब दबाई मुस्कुराया था। 4 साल बिना कसूर के तुमने बहुत कुछ गंवा दिया है इर्तज़ा। खुद को मुजरिम ठहराकर अब गलती मत करो और भाभी को फ़ोन करो। सुर्ख आंखों से आमिर को देखता हुआ इर्तज़ा टेबल पर रखे अपने सेल फ़ोन को हाथ में लिए आमिर से मुखातिब हुआ था। आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बच्चों के अंदाज में बोलता हुआ इर्तज़ा डॉक्टर आमिर के फलक शगाफ कह कहे पर मुबहम सा मुस्कुराया था। चलो भाई ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम आराम से बात करो। मुस्कुराकर इर्तज़ा की तरफ देखते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़े थे। आज की है आपने अपनी उम्र के हिसाब से बात। इर्तज़ा के शरारती अंदाज पर वो फ़कत मुस्कुराए थे। कल डिनर मेरे घर है, तुम्हारा और माहीन का। किस खुशी में? तुम्हारी, पहली तुम्हारी और दूसरी दोबारा से तुम्हारे हस्पताल ज्वाइन करने की खुशी में। और मैं कोई इनकार नहीं सुनने वाला। इर्तज़ा के खोलते लबों को देखकर अंगश्त की उंगली से तंबीह करते हुए वो बोले थे। जो हुक्म साईं। अपने सर को हल्का सा खम देता वो खुलकर मुस्कुराया। इर्तज़ा को अपनी कही हुई बातों पर इतने अच्छे तासुरात पर वो खुशी महसूस करते हुए वहाँ से गए थे। काश बाबा सरकार ये सारी बातें आप मुझे सिखाते। माहीन को फ़ोन करने का इरादा तर्क करता हुआ वो हवेली जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। गुलाम रसूल, आराम से चलाओ गाड़ी। बिन मौसम बरसती बारिश ने उसे उकताहट महसूस करवा दी थी। बारिश की वजह से आधे घंटे का सफ़र 2 घंटे में जो बदलने वाला था, एक पल की ताख़ीरी से भी अब उसकी जान निकल रही थी। जी साईं सरकार। आराम से गाड़ी चलाता वो अपने साथ बैठे इर्तज़ा को सीट की पुश्त पर सर टिकाए देखकर मुस्कुराया था। गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई थी, इर्तज़ा के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट रेंगी थी। जाओ, तुम्हारी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। 3 दिन से गुलाम रसूल भी इर्तज़ा के साथ अस्पताल में था। जी सरकार साईं। इर्तज़ा के खुशगवार लहजे पर मुस्कुराता वो गाड़ी से उतरा था। सर्वेंट क्वार्टर की तरफ खुद को भीगने से बचाते हुए गुलाम रसूल को भागते हुए देखकर वो दिल में मुस्कुराया था। नाम क्या है तुम्हारा? काफ़ी देर से वो बरसती बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। अपने सामने ही खुद को भीगने से बचाती हुई मुलाजमा शील के नीचे जा खड़ी हुई थी। माहीन के पुकारने पर वो मुस्कुराकर अपनी बीबी साईं को देख रही थी। सुखा नाम है मेरा बीबी साईं, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। माहीन की इस तरह तारीफ करने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कब से हो तुम यहाँ पर सुखा? अचानक से बारिश मजीद तेज़ी के साथ गरजते बादलों और कड़कती हुई बिजली के खौफ से वो भागती हुई सुखा के करीब आई थी। माहीन को अपने गीले बालों को कान के पीछे करते देख मुलाजमा यकटुक से ही देख रही थी। मैं तो बीबी साईं पैदा भी इसी हवेली में हुई हूँ। माहीन को इस तरह खुद से बात करते देखकर वो खुद को आसमान पर महसूस कर रही थी। अच्छा, सुखा के अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। इस वक्त कौन आया है? गाड़ी की आवाज़ पर माहीन ने सवाल किया था। दिल में तो इर्तज़ा के आने का ख्याल आया था, लेकिन फ़ौरन से ही झटक गई थी। मैं बीबी देख कर आती हूँ। बंद आंखें करती माहीन आसमान की तरफ मुंह किए हुए थी। सुखा की आवाज़ पर उसे गर्दन हिलाकर जाने की इजाज़त देती हुई वो मुस्कुराई थी। बहुत गलत किया मैंने अपने ही साथ, बिना सोचे समझे गलत फहमी पाल ली और अब उस डॉक्टर जल्लाद को देखने का दिल कर रहा है। अस्पताल में हुई अपनी और इर्तज़ा की मुलाकात याद करती हुई वो पहली बार इर्तज़ा को सोचती हुई मुस्कुरा रही थी। बाएं हाथ की उंगली में पहनी इर्तज़ा की दी गई रिंग पर वो लब रख गई थी। डॉक्टर जल्लाद में इंसानियत भी है, ये जानकर मुझे इतनी खुशी हुई है। अपने आप से सवाल करती वो पुरसोच अंदाज में आंखें बंद किए खुद पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से पुरसकून महसूस कर रही थी खुद को। तुम ऊपर क्या कर रही थी इतनी बारिश में? सुखा को छत पर से आते देखकर इर्तज़ा ने इस्तफसार किया। सर झुकाए वो डरी थी इर्तज़ा के अचानक इस्तफसार पर। वो सरकार साईं बीबी साईं के साथ थी। सर झुकाए वो डरी थी इर्तज़ा के अचानक मौजूदगी से। बीबी साईं? राइमा की बात कर रही हो? इर्तज़ा को राइमा का गुमान हुआ, क्योंकि शाहिदा बेगम तो वैसे ही बारिश के शुरू होते ही बिस्तर में घुस जाती थी। वो सरकार साईं, वो माहीन बीबी साईं। नज़रें झुकाए वो बोली थी। माहीन है ऊपर? माहीन के नाम पर वो खुद हैरान हुआ। जी सरकार साईं, वो बीबी साईं का बारिश में नहाने का दिल चाह रहा था, इसलिए। मजीद आगाह करती वो वापस से छत पर जाने के लिए मुड़ी थी ताकि वो जाकर माहीन को इर्तज़ा के आने की इत्तला दे सके। तुम जाओ और हवेली की सारी लाइट्स बंद करवा दो।
माहीन के बारिश में भीगने की खबर पर वो ज़ब्त से हुक्म करता हुआ खुद छत पर जाने की खातिर बढ़ा। एक और बात, और सब मुलाजमीन अपने कमरों में जाओ, मुझे हवेली में कोई भी ना दिखे। अगर कोई एक भी मुलाजिम मुझे दिखा ना तो तुम अपने घर से निकल जाने की तैयारी बांध कर रखना। गुस्से से तंबीह करता हुआ इर्तज़ा सुखा के वजूद में खौफ की लहर दौड़ा गया। फौरन से पहले वो वहाँ से भागी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं माहीन? इर्तज़ा की आवाज़ उसे अपना वहम लगा था। माहीन, अब की बार वो ज़रा थोड़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा था। इतनी अच्छी बारिश में भी मुझे अपने जल्लाद शोर की आवाज़ क्यों आ रही है? खुद से मुखातिब होती हुई वो वापस से मगन हुई थी। पागल है क्या ये लड़की? खुद से बोल रही है, बात कर रही है, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो। माहीन को खुद से बुड़बुड़ाते देखकर वो परेशान हुआ था। गरजते हुए बादलों और कड़कती हुई बिजली के डर से वो दोबारा से शील के नीचे आ खड़ी हुई थी। कहाँ रह गई सुखा? खौफ से सोचती हुई अपने पीछे किसी का साया देखकर वो घबराई थी। कौन है? डर में आवाज़ भी जैसे उसके गले में अटकती हुई उसे महसूस हुई थी। इर्तज़ा शाह। माहीन के खौफ को बखूबी समझा था। इर्तज़ा शाह मतलब? पीछे मुड़ती हुई वो नाम दोहरा गई थी। मतलब मैं हूँ इर्तज़ा शाह। लफ्ज़ों पर जोर देता माहीन के कन्फ्यूज चेहरे को हैरत से वो देख रहा था। ये सच में है या वहम है मेरा? ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती हुई इर्तज़ा के चेहरे पर अपने ठंडे हाथ रखती हुई अपनी कन्फ्यूजन को दूर करती एकदम से पीछे हटी थी, जैसे करंट लगा हो। माहीन की अजीबोगरीब हरकतों को देखता हुआ वो जिद आया था। माहीन, आप सुन रही हैं? अब की बार वो ज़रा गुस्से से मुखातिब हुआ था। हाँ सुन रही हूँ। इर्तज़ा को अपने रूबरू देखकर वो अब मुकम्मल तौर पर हैरान थी। सुखा, ये लाइट्स क्यों बंद करवा रही हो? अपने कमरे से बाहर आता शाहिदा बेगम लाइट्स ऑफ करती हुई सुखा से पूछ रही थी। शाहिदा बेगम के पूछने पर वो मजीद घबराई थी। बीबी सरकार, वो साईं सरकार का हुक्म है। इर्तज़ा आ गया है। हैदर तो अपने कमरे में कब से जा चुका था और दिलावर शाह तो कब के सो चुके। शाहिदा बेगम के पूछने पर वो गर्दन हिला गई। कहाँ है? इर्तज़ा के आने की खबर उन्हें खुशी बख्श गई थी। बीबी सरकार, वो बीबी साईं के साथ छत पर है। अच्छा तुम जाओ और जो हुक्म शाह ने दिया है वो पूरा करो। शाहिदा बेगम के कहने की देर थी। वो किचन में मौजूद सब मुलाजमाओं को जाने का कहती हुई खुद भी उनके जाने के लिए पीछे चली गई थी। शुक्र है शाह तुम आ गए। माहीन और इर्तज़ा को सोचकर मुस्कुराती वो अपने कमरे की सिमत बढ़ी थी। क्या कर रही हैं आप यहाँ, वो भी इतनी तेज़ बारिश में? बीमार पड़ गई तो? माहीन को शील्ड के नीचे से वापस बाहर जाते देखकर माहीन का पीछे से उसने हाथ पकड़ लिया था। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे आदत है। नज़रें झुकाए वो इर्तज़ा के फ़िक्रमंदाना अंदाज को समझती हुई आम से अंदाज में जवाब दे गई थी। माहीन, आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मेरा दिल कर रहा था बारिश में भीगने का, इसलिए। अपनी कलाई पर इर्तज़ा की मजबूत गिरफ्त से वो घबराई थी। अगर इतना ही भीगने का दिल कर रहा है तो आप शावर के नीचे खड़ी होकर भीग सकती थी। बारिश समझकर कम अज़ कम उसे इर्तज़ा से इस बात की तवक्को नहीं थी। ये आपका शहर वाला घर नहीं है जहाँ सिर्फ आप और आपके बाबा रहते थे। नर्म लहजे में वो बोला था। ये शाह हवेली है जहाँ मकीनों से ज़्यादा मुलाजमीन की तादाद है। अगर ऐसे हुलिये में शाह ख़ानदान की बहू मुलाजमों के बीच से गुजरती हुई अपने कमरे में जाएगी ना तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। माहीन के जिस्म पर चिपके हुए कपड़ों पर वो इस्तेहकाक होने के बावजूद भी नज़रें चुरा गया था। खुद पर नज़र डालती हुई अपने गीले दुपट्टे से खुद को ढांपने की कोशिश करती वो शर्मिंदा नज़र आ रही थी। सॉरी। नज़रें नीची किए वो उंगलियों को आपस में उलझाए हुए थी। सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, हवेली की सारी लाइट्स ऑफ करने का कह दिया है। इर्तज़ा का गुस्सा पल भर में गायब हुआ। कुछ लम्हे तक खामोशी का राज रहा उन दोनों के दरमियान, जिसे माहीन ने तोड़ने में पहल की थी। आप बारिश में नहीं भीगते क्या? इर्तज़ा को खामोशी से बरसती बारिश देखता देखकर वो सवाल कर गई थी। नहीं, मुख्तसर सा जवाब देता वो सामने ही देख रहा था। माहीन का हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था। तो मुझे ही भीगने दें, अब तो सारी हवेली की लाइट्स ऑफ हो गई हैं। काफ़ी देर से इर्तज़ा के साथ बरसती बारिश को देख कर उकताहट का शिकार हो रही थी। आप मेरी बात थोड़ी मानेंगी, वो भी उसकी जिस जल्लाद से आप नफ़रत करती हैं। माहीन का हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वो नाराज़गी से बोला। मैं नफ़रत नहीं करती आपसे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। बिला वजह मैं आपसे अब नफ़रत क्यों करूं? फिर सर्द रवैया क्यों मेरे साथ? माहीन की हल्की सी आवाज़ में दिए गए जवाब पर वो सवाल कर रहा था। मुझसे मौल वाली आपकी हरकत भूली नहीं जाती, इसलिए आपको देखकर मेरा लहजा खुद ब खुद सर्द हो जाता है। माहीन का अंदाज किसी मुल्जिम के एतराफ़ के जैसा था। मगर अब तो अच्छे से बात कर रही हूँ ना, और आगे भी अच्छे से करूँगी। इर्तज़ा का हाथ पकड़ती हुई वो इर्तज़ा को हैरान कर गई।
बुखार तो नहीं हो गया आपको कहीं? अपने माथे पर हाथ रखते इर्तज़ा के हाथ को वो गुस्से से झटक गई थी। माहीन के हाथ झटकने पर वो दिल खोल कर मुस्कुराया था। अब नीचे नहीं चलना आपको, खफगी से कहती इर्तज़ा को मुस्कुराते हुए देखकर वो नज़रें झुका गई। चलें। माहीन के हाथ को वापस से वो थाम गया था। आप तो सर्जरी के बाद आने वाले थे ना? अंधेरे में इर्तज़ा का हाथ पकड़े चलते हुए वो इर्तज़ा के अचानक आने का सबब जानना चाह रही थी। आप कहें तो वापस चला जाता हूँ, आम से अंदाज में कहता वो रुका था। मैंने ऐसा कब कहा? आप ही ने कहा था कि सर्जरी के बाद आएंगे, इसलिए पूछा था मैंने। खुद को कंपोज करती हुई उदास थी वो। इर्तज़ा के वापस जाने का सुनकर उदास हो गई थी। आप कमरे में जाएं और चेंज कर लें, मैं माँ सरकार से मिलकर आता हूँ। इर्तज़ा को जाते देखकर वो कमरे में दाखिल हुई। सोए हुए थे तुम? रात 11 बजे हया की कॉल पर वो ज़रा हैरान ना हुआ था। नहीं, जाग रहा था। आम से अंदाज में बोलता वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, ये सोच कर कि यह हमारी मंगनी के बाद की पहली बारिश है। हया की चहकती हुई आवाज़ पर वो मुस्कुराया था। पर मुझे तो आ रही है, हया को छेड़ने की गर्ज से वो बोला था। बड़े ही कोई बदमज़ा किस्म के इंसान हो। जब ही तो मैं तुम्हें सड़ी हुई कुकड़ी कहती हूँ, चिढ़ते हुए वो चबा कर बोली थी। बराए मेहरबानी मुझे सोने दो और तुम जागती रहो। तबाही भाड़ में जाओ तुम, देखना शादी के बाद ये तबाही तुम्हें और तुम्हारी नींद को कैसे तबाह करेगी। बिना हैदर की सुने वो गुस्से से फ़ोन काट गई थी। काश मुझे पहले ही तुम नज़र आ जाती, ये सोचकर उसे मलाल हुआ था। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी में तबाही मचाने का हौसला रखती हो। हया का फ़ोन काटने के बाद बेड क्राउन से टेक लगाए वो आंखें बंद किए काफ़ी देर तक उसे सोचकर मुस्कुराता रहा था। शाहिदा बेगम के कमरे का दरवाज़ा लॉक देखकर वो अपने कमरे की सिमत बढ़ा था। भूख और तकन की वजह से उनके कमरे की सिमत आया था, मगर लॉक देखकर वो किचन की तरफ मुंह करके चला गया। लाइट्स ऑन करता हुआ वो पहले चेंज करने का सोचकर अपने कमरे में गया था, जहां माहीन को बेड पर दराज देखकर उसकी भवें सुकड़ी थीं। थोड़ी देर बाद शावर लेने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि माहीन के पुकारने पर रुका था। कहाँ जा रहे हैं आप? इर्तज़ा को जाते देखकर वो उठ बैठी थी। भूख लग रही है मुझे, इसलिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। नॉब पर हाथ रखते हुए थकन से चूर लहजे में वो बोला था। आप बैठे, मैं ला देती हूँ आपके लिए खाना। बेड से उतरती हुई वो फर्माबरदार बीवियों की तरह मुस्कुरा कर बोलती हुई उसे देख रही थी। माहीन का बदला हुआ अंदाज देखकर इर्तज़ा हैरत में मुब्तला हो रहा था। ठीक 10 मिनट के बाद हाथों में ट्रे थामे माहीन कमरे में वापस दाखिल हुई थी। ट्रे लाती हुई माहीन को देखकर वो मुस्कुराया था, मगर ये मुस्कुराहट कुछ सेकंड की मेहमान थी। ये रहा आपका खाना। इर्तज़ा के सामने ट्रे रखती हुई वो चहक कर बोली थी। थैंक यू। मुस्कुराकर माहीन को देखते हुए इर्तज़ा ने अपने सामने रखी ट्रे को देखकर मुस्कुराहट समेटी थी। क्या हुआ? इर्तज़ा की ट्रे पर ठहरी नज़र को नोटिस कर गई थी वो। कुछ नहीं। जबरन मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो ट्रे में रखे ब्रेड के सूखे स्लाइस और चाय के 2 कपों को देखकर अपनी किस्मत पर मातम कुना था। क्या हुआ? ये खाना अच्छा नहीं लगता आपको? चेहरे पर मासूमियत सजाए वो इर्तज़ा के सब्र का इम्तहान ले रही थी। इसे खाना नहीं कहते, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था वो। 10 मिनट में तो सिर्फ इतना ही बनाया जा सकता है। इर्तज़ा की बुड़बुड़ाहट वो बखूबी सुन चुकी थी। ये आपने बनाया है? ब्रेड को देखकर तंज़िया अंदाज में वो पूछने लगा। ये तो मैंने फ्रीज़र से निकाल कर ट्रे में सजाई हैं, बनाई तो मैंने सिर्फ चाय है। खाना इसलिए नहीं लाई क्योंकि वो रहीम की मम्मा ने बनाया था और मुझे राइमा ने बताया कि आप मुलाजमाओं के हाथों से पानी तक लेकर नहीं पीते। वो जाके खाना ले आती मैं आपके लिए, इसलिए मुझे यही मुनासिब लगा। तफसील से बताती हुई इर्तज़ा को ब्रेड के सूखे स्लाइस खाते देखकर वो खामोश हो गई थी। माहीन को बेड पर बैठते आराम से चाय पीते देखकर वो सूखे स्लाइस को बमुश्किल चाय का घोंट भरकर हलक से नीचे उतार रहा था और अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचकर परेशानी से गहरा सांस भर गया था।